He's enabled us to be here in His presence, in His house. Last week, all know that Sister Jaya is not doing well. She's quite sick. So we went to visit her. And as soon as we entered in a sitting room, तो उन्होंने इतना खुशी हो गया कि जोर जोर से भीतर से रोने लगी ना, जो कह के दिल छू लेता है तो आंसू जो रकम से निकलता है, इतना जोर जोर से रोने लगी अंदर से, और पास्ता के फेस पकड़ के अपने हाथ से लेकर किस किया उन्होंने. एंड सबको उसी तरह हमारे बीच में थी, उसी तरह सबको किया. And then she started praising God. Thank you, Jesus, for bringing my sisters here. Thank you, Jesus, for making me well. Thank you, Jesus. It's a beautiful day. And she kept praising Jesus and thanking Jesus that we were there. And then she kept talking, thanking God, looking up and thanking God. And then we started singing. And when we started singing, she held her hand like this and closed her eyes and looked up at the sky, heaven, and kept singing songs that she could sing. After our devotion, there was peace in her heart. There was peace in that house. She wasn't talking like the way she was talking. There was no crying. She was sitting down so peacefully. And we thank God that she was touched by God's blessings. मैंने इतना गरीब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने गई थी, कितने को मैंने देखा, लेकिन इस तरह विश्वासी मैंने कभी नहीं पाया कि बीमार होते हुए भी she kept praising God. She kept singing praises to God, thanking Him and thanking each one of us that we went to visit her. What a great joy when we saw her. उसके दिल में भी इतना खुशी आया कि ये बहनें अपना टाइम निकाल के मुझे देखने आए हैं. And she said, He made it possible. तो हम लोग परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाएं, उनके काम के लिए हम लोग आगे बढ़ते जाएं. जो कुछ हमसे हो, हम परमेश्वर के नाम पे उनके लिए हो. Let us pray. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आए हैं महान परमेश्वर. इस मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते, इस शुभ दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते. हर एक मेंबर्स जो यहाँ है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते. आप कितना महान है. You are so good, Lord Jesus. You are so precious. You are so beautiful, Father God. We thank you. We honor you. We bless you. Lord, we commit this time to you. We commit this preaching that I have prepared, Lord. Bless me to speak the way you want me to speak. Let it be only in your praise. In Jesus' name, Amen. आज का रीडिंग है Psalms 46, 1-5. Psalms 46, 1-5. God is our refuge and strength. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. उसी को पुकारो, वही हमें आके मदद करेगा. वही हमारा आखिरी विश्वास है. Therefore we will not fear, though the earth gives way, the mountains fall into the heart of the sea. जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे पास कोई डर नहीं होना चाहिए. Though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging, हमारा डर परमेश्वर के दे दो, अपना डर परमेश्वर के दे दो. There is river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. हमारा परमेश्वर है जो हमें मददगार के लिए तैयार है, केवल हमें उसको पुकारना है. We have 3 great lessons when we live in the presence of God. परमेश्वर के सामने रहने से 3 blessings हमारे पास है. The Lord becomes our refuge. वो हमारा शेल्टर बन जाता है, वो हमारा रखवाला बन जाता है. He becomes our hiding place, जहाँ हम जाकर छुप सकते हैं, जिसके सहारा से हम रह सकते हैं, और वो हमारा शरण स्थान बन सकता है. हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर तैयार है करने के लिए. हमें केवल उन पर विश्वास करके उन पर पुकारना है. Proverbs 18:10 कहता है, The name of the Lord is most high tower. The name of the Lord is most high tower. जब हमें तकलीफ आती है तो हम बताते हैं जीसस, ओ गॉड. कभी कभी बेकार से हम उनके नाम लेते हैं. तकलीफ होती है, हम उनको 1-2 बात बोल देते हैं, लेकिन हम प्रेज करते हैं अपने परमेश्वर को. The name of our Lord is most high tower. The righteous who's doing right, morally right, run to him and are safe.
उसी के पास जाओ, वही हमें सुरक्षित रखेगा और वही हमें सहारा देगा. इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइम देयर वर सिटीज ऑफ रेफ्यूज, जहाँ पे पुराना उनके पास रेफ्यूज जहाँ बिल्डिंग था, और तकलीफ होने पे जाके वहाँ शेल्टर करते थे, शेल्टर लेते थे. फिजी में भी जब बाढ़ आती थी, तूफान आता था, तो वहाँ शेल्टर बनती थी, और उस शेल्टर में हम वो सेफ रहते हैं. तो परमेश्वर हमारा शेल्टर है. जब हम उसके करीब जाते हैं, जब उसको हम पुकारते हैं, जब उस पर हम विश्वास करते हैं, ही बिकम्स आवर शेल्टर. वही हमारा शेल्टर बनेगा. वो हमें निकालेगा नहीं, वो हमारे साथ रहेगा, हमें अगुवाई करेगा. जो रेफ्यूज होम्स है, दैट रिप्रेजेंट्स क्राइस्ट, क्योंकि व्हेन वी रन टू क्राइस्ट ही गिव्स अस शेल्टर. जब उस शेल्टर में से तो हमें लौटना पड़ता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें नहीं लौटना पड़ता, क्योंकि वो हमारे दिल में बस जाता है. हम उन्हें दिल से ग्रहण कर लेते हैं और उनके साथ चलने की कोशिश करते हैं. वी रन विद हिम, ही वॉक्स विद अस, वी स्लीप, ही इज देयर टू गाइड अस एंड टू कीप अस सेफ. ही सेव्स अस फ्रॉम ट्रबल. और क्या चाहिए हमें? वही हम चाहते कि हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई करे, हमें आशीष दे और हमारा सहारा बने. परमेश्वर द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, वो हमारा ताकत है. परमेश्वर जब हम में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं. हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, हमें साहस मिलती है कि हम प्रभु के काम करें. जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, जब हम ट्रायल टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं, तो वी बिकम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं. क्या करें अब, किसके पास जाएं, कौन हमें सहारा देगा? ना माँ ना बाप, कोई नहीं सहारा दे सकता है. जब हम अपने घुटनों पे होकर प्रभु के पास रोते हैं तो प्रभु हमें सहारा देता है. जब हम फिजिकली एकदम ताकतवर बेकार हो जाते हैं, कुछ ताकत नहीं है, तबीयत नहीं अच्छा है, सोच में पड़ गए अब क्या करें, गो टू हिम, ही इज देयर फॉर अस, वेटिंग फॉर अस. अगर हम परमेश्वर के प्रेजेंस में रहेंगे तो हम तकलीफ से बचेंगे. He will give us strength, He will guide us and keep us safe. In our trouble, the Lord will be very present help. कोई नहीं उतना हेल्प करेगा. जब हम तकलीफ में होते हैं तो परिवार भी दूर हो जाते हैं, फ्रेंड्स भी दूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर वेट करता है कि कब हम उनको पुकारें, कब उनसे हम अपना दुख शेयर करें. शायद जो मदद हम मांगते शायद उस वही समय नहीं मिलेगा, लेकिन मदद मिलेगा. वी हैव टू वेट, क्योंकि वही हमें ट्रबल से निकालेगा. एंड ही विल शो अस हिज होली प्रेजेंस इन अस. शांति मिलती है उसके पास जाने के लिए. जो 3 विश्वासी थे, जब राजा ने हुक्म दिया कि सब कोई मुझे वर्शिप करो, तो 3 प्रभु के विश्वासी थे, शेड्रक, मेशक एंड अबेदnego. ये तीनों परमेश्वर के दृढ़ विश्वासी थे. They didn't want to bow down before the king. वो अपना परमेश्वर को पुकारते रहे. People hated them. और रिपोर्टर्स जाके रिपोर्ट किए कि ये तीनों तो अपने परमेश्वर का अभी तक पूछते हैं, आपको नहीं दंडवत करते हैं. एंड द किंग, खुशी होगा, किंग became very angry, he became very mad. उन्होंने क्या किया, अच्छा इनको अब गेट ट्रीट करना है, इनको अब मार देना है, इनको हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी टू वर्शिप मी. ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही वांट द होल कंट्री उसको वर्शिप करे. लेकिन क्या हुआ, बड़ा आग जलाए और उसके अंदर इनको झोंप दिया, तीनों को छोप दिया. ये दोनों प्रभु के गाते रहे, प्रभु पर विश्वास करते रहे, हंसते हंसते वहां पर चले गए. और फिर ये लोग क्या देखते हैं कि वहां 3 लोग गए थे, उनके साथ 4 लोग हैं. वो चौथा कहाँ से आया? कौन है वो चौथा? परिवार तो थे नहीं वहाँ, फ्रेंड्स तो थे नहीं वहाँ, चौथा कौन आया? चौथा था हमारा परमेश्वर, जिन्होंने इनको आग से बचा दिया. और जब ये लोग बाहर आए, जब इनको बाहर निकाला गया, आग छुप गया, तो यू नो व्हाट हैड हैपेंड? द किंग बिकेम अ बिलीवर. पूरा गांव, पूरा देश परमेश्वर को जय जयकार करने लगे, सब बिलीवर्स बन गए. तो इनका जो विश्वास था उसके द्वारा पूरा गांव जो है, जो टाउन था, सब परमेश्वर के विश्वासी बन गए. वे लोग डर नहीं लगा उनको, हिम्मत से गए, हे प्रभु हम लोग जाते हैं, आप हमारा अगुवाई करना. और कितना सुंदर से परमेश्वर उनको अगुवाई किया और फिर उनको बचा दिया. तो अगर हम कितना तकलीफ हमारा काम हो, कितना ज़्यादा हम बीमार हैं, कोई रकम की तकलीफ हो, हमारा परमेश्वर है, ही इज़ देयर फॉर अस एंड ही विल नॉट लीव अस, नो forsake us. तो हम लोग देखते हैं कि 2 कोरिन्थियंस 13:8 में लिखा है, 2 कोरिन्थियंस 13:8 में लिखा है, तो हम अगर हम कितना तकलीफ हमारे काम हो, कितना ज़्यादा हम बीमार हैं, कोई रकम की तकलीफ हो, हमारा परमेश्वर है, ही इज़ देयर फॉर अस एंड ही विल नॉट लीव अस, नो forsake us.
परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारे साथ रहता है और वो हमें अगुवाई करेगा। फिर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब अपने धन दौलत परिवार सूरत सब पे घमंड करने लगते हैं, तो क्या होता है? वो कोई नहीं काम देगा, वो कोई नहीं काम देगा। परमेश्वर के आशीष हमें काम देगा। हम चाहते हैं हमें धन हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास फ्रेंड्स हो, लेकिन जब उससे ज़्यादा हम घमंड करने लगते हैं तो जो एर्थली ब्लेसिंग पर हम निर्भर करते हैं वो सब खलास रिमूव्ड हो जाता है, परमेश्वर उनको हमसे दूर कर देता है। हम देखते हैं कि जोब के देखो कितना विश्वासी था, परमेश्वर पे दृढ़ रखे बनाए रखे था, लेकिन जब एक दिन में उनका पूरा सब कुछ नाश हो गया, बच्चे बाल बच्चे उनका धन दौलत जितना सब कुछ था, उन्होंने परमेश्वर को केस नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर पर झगड़ा नहीं किया, उनको गुस्सा नहीं किया। He kept praising God. You are my savior and you know the best. और प्रभु ने उनका विश्वास दिया, क्योंकि प्रभु शैतान के बीच में ये सलाह हुआ था कि कौन जीतेगा, and Satan told God कि मैं जीतूंगा, क्योंकि वो आपके उनका सब धन ले लोगे तो वो गुस्सा होगा, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया। He kept thanking God, he kept praising God. तो हम थोड़ा से बीमार होते हैं, हम लाचार हो जाते हैं, और लाचार होने से तो हम और लाचार हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। बीमारी आएगा, सबको आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर है, वो चाहता कि हमारे चेहरे पर हंसमुख बना रहे हमारा चेहरा और हम खुशी में जिए। वो हमें अगुवाई करेगा, जुड़ते सहित नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमें साथ रखेगा। और जब हम अपने नाम पर घमंड करते हैं, अपने धन पर घमंड करते हैं, तो हमारे लिए नाश ही नाश लिखा है। बट हम जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि क्या फ़ायदा डिस्टर्ब होने से, क्या फ़ायदा लड़ने से, क्या फ़ायदा झगड़ने से। हम लौट के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, मसीह के पास आते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें वो शांति मिलती है, शांति ही शांति मिलती है। क्यों नहीं हम प्रभु परमेश्वर की ओना करें, उसको ग्लोरीफाई करें, उसको थैंक यू करें। जो कुछ हमारे लिए है, हम सांस लेते हैं उनके द्वारा, हम भोजन खाते हैं उनके द्वारा, हम काम करते हैं प्रभु के आशीष के द्वारा, हमारे पास परिवार सुखी है प्रभु के आशीष के द्वारा। हम सब यहाँ उपस्थित है, एक रोज़ में हम लोग नहीं आ पाते, एक रोज़ के लिए भी, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, हमें संडे को भी कहीं जाना है, घूमना है, ये करना है, वो करना, संडे को भी हम बिजी बना लेते हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है, इस संडे को हम अपने आप को इस चीज में लाएं और परिवार के साथ हम उनकी जय जयकार करें, ओना करें, ग्लोरीफाई करें, क्योंकि जब हम मजबूत होते हैं तब हमारा परमेश्वर खुशी होता है और हम उसको इसी तरह से हम उनको वर्शिप कर सकते हैं। लेट अस स्टैंड ऑन द ट्रूथ। कुछ भी हो जाए, सच्चाई से मत मुड़े, झूठ मत बोले, बहाना मत लगाएं, क्योंकि हम भी करते हैं, सब हम करते हैं, लेकिन वो करने से हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं, हम सबके ऊपर ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन आता है कि वो हमारी अगुवाई करे। हम जब सुबह कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हमें हमारे साथ चलना, होली स्पिरिट हमारे साथ चलना, वो हमारे साथ चलता है, लेकिन हमें भी अपना पाठ करना है, हमें भी केयरफुल से चलना है ताकि हम सुरक्षित रहें। वो हम अपना पाठ करेगा, हमें अपना पाठ करना है। दूसरों की सेवा करने में मत चूके। लेट अस गिव होल हार्टेडली, जैसे परमेश्वर ने हमें दिल खोल कर दिया है। क्या कमी हमारे पास है? भले हम सब एक रकम के धनी नहीं हैं, हम एक रकम के सुंदर नहीं हैं, हमारे पास महल नहीं है एक तरह, चाहे हम झोपड़ी में रहें, चाहे एक बेडरूम घर में रहे, लेकिन हम खुशी से रहे। जितना हमारे पास होता है उतने हम तकलीफ में होते हैं, उतने वरी करते हैं, उतना और बटोरने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है, हम दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और हम अपने धन पे, अपने बल पे लोलीन रहते हैं। और जब हम अपने आप को रियलाइज करते हैं कि कहाँ है मैं, क्या कर रहा हूँ, किस पर हम घमंड कर रहे हैं, और फिर लौट के हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर खुशी हो जाता है, ब्लेस करता है हमें और हमें आशीष देता है। एक बहुत धनवान था, उसके पास इतना धन था, ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। 36 ईयर्स पे उसको कैंसर हो गया, ही वॉज डाइंग ऑफ कैंसर। और जब वो धन बटोर रहा था तो धन के साथ में दुश्मनों को भी बटोर रहा था। पीपल वे लुकिंग फॉरवर्ड टू किल हिम, टू डिस्ट्रॉय हिम, टू ग्रैब हिज वेल्थ। और उसके पास इतना घमंड था
और जितना उसके पास धन था उतने भारी उसके पास दुश्मन थे, और उतना भारी उसके पास गार्ड्स थे। इवन वो वॉशरूम जाता था तो गार्ड्स उनके साथ चलते थे, और जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसके खाट के बगल में गार्ड्स थे, उनके साथ में गार्ड्स 24 आवर्स था। कैसा जिंदगी कि कहीं फ्रीली तुम चल नहीं सकते हो, तुम्हारे साथ गार्ड्स है, तुम डर में चलते हो, लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारे पास दुश्मन ही दुश्मन है, कोई जिंदगी नहीं। एंड देन ही गॉट एडमिटेड, ही वॉज वेरी वेरी सिक। पहले हॉस्पिटल्स में वो बाइबल रखते थे ना, कि कोई जो बीमार है तो बाइबल पढ़ सकता है, और इसको एक बाइबल मिला, उस रूम में उसको बाइबल मिला, और बाइबल को जब पढ़ा तो उन्हें मिला कि इट इज़ मोर प्लेजेंट टू गिव देन टू कलेक्ट, मोह आशीष से देने में, बटोरने में नहीं। एंड देन दैट टच्ड हिज हार्ट, दैट वन वर्स टच्ड हिज हार्ट, एंड ही स्टार्टेड गिविंग अवे। सब कुछ देने लगा, जितना गरीब को, हॉस्पिटल्स को, ऑर्फनेज को, सब देने लगा धन। और जब धन देने लगा तो ही स्टार्टेड फीलिंग गुड। ही वॉज अ क्रिश्चियन मैन, ही वॉज वर्शिपिंग लॉर्ड, और उसको ऐसे महसूस हुआ कि खुशियाँ आ गई मेरे पास धन दौलत तो कोई नहीं खुशी लाता, इतना गार्ड से कोई खुशी नहीं लाता, महल है मेरे पास, वो भी खुशी मुझे नहीं दे सकता था। लेकिन जब वो बांटने की कोशिश किया, शुरू किया, धन जाते गया, खुशियाँ आती गई, धन जाते गया, खुशियाँ आती गई। एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और यू नो, उसको डॉक्टर्स ने 6 वीक्स दिया था कि 6 वीक्स में यू कैन ओनली लिव फॉर 6 वीक्स, वट एवर यू वांट टू डू, यू डू इट। You know what? He died at the age of 92. He kept praising God. He kept giving. And then he realized no more gods, no more pride, no more all those naughty things. And then when he died at 92, people from all over the world came to the funeral. There was no enemy, no guards, nothing. And he died peacefully, and there was a peaceful funeral. तो परमेश्वर हमें तरह तरह से दिखाता है, बताता है कि हम रोंग हैं, हमें ये करना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो बोलता है, हम सबसे बोलता है कि माय डॉटर आई लव यू, माय सन आई लव यू, हम सुनते नहीं हैं क्योंकि हम तो अपने घमंड में हैं, अपने पाप में हैं। परमेश्वर जो हमसे बोलता है वो हम अनसुना कर देते हैं। बाइबल पढ़ने के समय आता हम थाली पढ़ के बस फिनिश करते थे। जब हमें टीवी पे बैठ कर देखना है तो हम आवर्स एंड आवर्स बैठ के देखते हैं प्रोग्राम। तो क्या होता है, तुलना करें कि इतना टाइम देते हैं परमेश्वर को, इतना टाइम देते हैं हम टीवी को और कुछ करने में। सुबह परमेश्वर को अपना समय दे दो, सोने से पहले अपना परमेश्वर को समय दे दो, जब सके तब परमेश्वर को कंटिन्यू करो, बिकॉज ही इज़ आवर रेफ्यूज, ही इज़ आवर शेल्टर, ही इज़ आवर गॉड। उसके बिना हम अपना जिंदगी जैसे हम चाहते हैं वैसे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इज अ वेरी हेल्प, ही इज अ वेरी हेल्प, इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्योंकि वो हमें छोड़ेगा नहीं। हमारा जीवन कंप्लीटली उन्हीं से स्टार्ट होता है और उन्हीं के साथ उनको सेवा करते करते हम फेथफुली अपने लॉर्ड को सेवा करते करते परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। पर गॉड्स प्रेजेंस इज टीचिंग चेंज्ड, हमें चेंज लाने की करता है। कुछ हमें तकलीफ आती है क्या, किसी के हम गॉसिप कर लेते हैं, किसी को हम चाहते नहीं हैं, कुछ ऐसे मैला दिल में आया है, तो वो सब हमें परमेश्वर से दूर कर देता। हम छोटा छोटा चीज़ को ख्याल करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को धोना चाहता है। He wants us to be clean people, helpful people, honest people, loving people. तो क्या होता है जब हम प्रभु को सब कुछ दे देते हैं, then हमारे चेहरे पर वो विश्वास, वो खुशी दिखाती है कि हाँ, आई एम प्रभु के बच्चा हैं। जब हम मिजरेबल होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, होपलेस हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम दूर चले जाते हैं, परिवार से भी दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हमें क्या हमारे साथ होता है, बीमारी, तकलीफ हमें सहायता देती है, हमारी कंपनी होते हैं। तो बोलते हैं कि इट इज़ मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव, मोर ब्लेसेड टू गिव होल हार्टेडली, चाहे अपना समय हो, चाहे अपना मोटर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे धन दौलत कुछ हो, समय दो, परमेश्वर के दे दो। और कैसे हम परमेश्वर को दे सकते हैं, उसके काम करने से, उनके लिए सेवा करने से, क्योंकि परमेश्वर तो वही चाहता, हम सब उनके बच्चे हैं। कोई तकलीफ में है तो उनको हम लोग विजिट करें, उनको हम उनके साथ में रहे और उनको हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा अगर हम उनके वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा।
जब हम सब कुछ अंधियारा दिखने लगता है, सब कुछ डार्क देखने लगता है, सब कुछ मैला दिखने लगता है, तो कौन हमारे सामने आता है, कौन नजर आता है? हम सब कुछ सह कर बाद में लास्ट में हम परमेश्वर को पुकारते हैं। क्यों नहीं हम पहले उनको पुकारे, सब कुछ उन्हीं के दे दे। बाद में तो थोड़ा देर हो जाता, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। हम लोग अभी गुस्सा जाते हैं, अरे वो तो सबके नौता दे दी, हमें सबसे लास्ट दी, हम नहीं जाएगा उसके शादी में, वो सबके सब चीज़ बांट दी, सब हमें थोड़ा से बचा उला के दी, हम नहीं जाएंगे, नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि सब कुछ तुम इंजॉय कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास आए हो। परमेश्वर माफ करता है और उन्हें गोद में ले लेता है। तो हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे दिल में जो करवाहट है, जो हम जिससे हमें दूर हो रहना पड़ता है, वो सब हम निकाल देते हैं। वो हमें हेल्प करेगा, क्योंकि आवर गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम्स। कुछ भी हो, दिल से विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास ले जाओ, क्योंकि ही इज अ प्रेजेंट हेल्प इन नीड ऑफ ट्रबल, इन नीड ऑफ टाइम। जब हम नीड करते हैं तो ही इज ओनली देयर टू हेल्प अस। कोई नहीं हेल्प करेगा, कोई नहीं सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। कितना प्रॉब्लम्स हमें हो जाता है, हम दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि वो हंसेगा या ये करेगा वो करे, सबको बताएगा। लेकिन हम जब परमेश्वर को बताते हैं तो किसी से नहीं बोलता है, वो हमारे दिल को छूता है, हमें मुसीबत से निकालता है। कभी अपने मन में ये विचार मत लाएं कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। परमेश्वर ही इज ऑलवेज देयर, क्योंकि आवर गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम्स। तो फिर हम किसके पास जाएं? मेरे पास आओगे तो मैं बोलता अच्छा परमेश्वर के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक हो जाओगे, ये होगा। फिर मैं अंशनी से जाके बताएगी, अरे उसके पास इतना भारी प्रॉब्लम है, वो हमारे पास ऐसा, वो जाके उससे बताएगी। दैट इज नॉट द वे लॉर्ड वांट्स अस। 1 to 1 परमेश्वर के साथ में हम जाते हैं। परमेश्वर दूसरों से नहीं कहता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें तकलीफ से निकलने की रास्ता दिखाता है, वो हमें मदद करता है, क्योंकि ही इज द प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल, नीड। जब हम नीड करते हैं, हमारा परमेश्वर यहाँ कितना भी तकलीफ हो, ही विल हेल्प अस टू सॉल्व इट। जैसे जया बहिनी को इतना शांति मिल गया, खुशी मिल गया, एंड शी वाज सो क्वाइट इन इट पीस। तो वी थैंक गॉड दैट ही इज सच अ ग्रेट गॉड, और वो हमें प्रॉब्लम से दूर करता है और हमें हटाता है। वही हमारा परमेश्वर है, वही हमें हमारे साथ रहेगा, चाहे हम बुरे हैं चाहे हम अच्छे हैं, परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेट अस बी स्ट्रॉन्ग, हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिम। उसको हम पुकारे, उसके साथ रहें, और वही हमारी अगुवाई करेगा। अपने धन पर, अपने दौलत पर, अपने मकान पे, अपने परिवार पर मत जाइए, परमेश्वर पर जाइए। थोड़ा समय उनको बिताइए, थोड़ा काम उनके लिए करिए, तो परमेश्वर कितना खुशी होगा। रास्ते में हम चलते हैं, लोग हमें पास करते हैं, तो हम भी मुंह इधर करके चले जाते हैं। अगर हम उनसे गुड मॉर्निंग कर दे, हेलो कर दे, कितना खुशी हो जाता है उनके। अब मैं कभी कभी देखती हूँ होमलेस है तो मुझे थोड़ा डर लग जाता है कि नशे में है, कर लेंगे। लेकिन जब उनसे गुड मॉर्निंग करो, मुंह हिला देते हैं ना, कुछ खुशी आती कि अच्छा ये कोई मुझसे हेलो किया है, कुछ बोला मुझे। लेकिन जब परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में काम करें जो परमेश्वर से दूर हैं, तो ही विल हेल्प अस, बिकॉज गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ही इज सो ग्रेट, he is so, and he wants us to be great, he wants us to be wise, he wants us to live on his words। जो कुछ बाइबल में लिखा है सब सत्य है, उस पर चलने से हम प्रभु के पास रहेंगे और उसके साथ रहेंगे। He is our perfect solution, और कोई नहीं, he is our perfect solution। कौन हम मुसीबत से नहीं जाते हैं, सहते नहीं, सब कुछ हमें होता है, क्योंकि हम डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, ये होता है, कितना रिफाइंड भोजन खाते हैं, कितना स्टार्ची फूड खाते हैं, कितना रेस्टोरेंट में खाते हैं, कितना होटल में खाते हैं, ये सब हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। लेकिन जब बीमार पड़ता था, अरे प्रभु कितना अच्छा से रहता है, क्या हो गया? तो भाई अपने डाइट को ख्याल करो, अच्छा डाइट खाओ जिससे हमें तकलीफ ना होगी। परमेश्वर अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है, दोनों मिलके हम लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि आवर गॉड इज ग्रेटर देन आवर प्रॉब्लम, एंड ही इज सो ग्रेट, एंड he is our perfect partner, he is our perfect savior, he will lead us to do the right। और उसके द्वारा, उसके छोड़कर हमें कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। फ्रेंड्स भी हैं, समटाइम्स जेलस हो जाते हैं, समटाइम्स नहीं, मेनी टाइम्स जेलस हो जाते हैं, और उनके पास सहायता लेने आओ तो रॉन्ग रास्ता बताते थे। परिवार भी कभी रॉन्ग डायरेक्शन दे देते हैं, अपना ओन फैमिली कभी रॉन्ग डायरेक्शन दे देता है, और उनके पास जाएंगे
वो कभी नहीं आपको रॉन्ग डायरेक्शन देगा. He will lead you on the right path. तो seek him, for God is always ready to help. He is always ready. हमें ना पैसा देना है, ना धन देना है, ना कुछ देना है, केवल उसके सन्मुख आना है और उससे प्रार्थना करना है. He is our Savior and is always ready to help us. So let us be with God's help. Let us lead our life with God's help, with His blessing, and save our church and our community faithfully. This is all He wants. Let us be faithful to each other. ग्रम्बल करते हैं और झूठ बोलते हैं, हाथ बंटोर लेते हैं और कामचोर कर लेते हैं, उससे ओवरकम करें, क्योंकि वही हमें हेल्प करेगा. एंड इफ वी ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स, तो हम परमेश्वर के अच्छे सेवक हो जाते हैं. चर्च की मिलकर सेवा करें, एक पर्सन नहीं कर पाएगा, हम सब मिले, पार्टनर विद आवर लीडर, और तब हमारा चर्च सक्सेसफुल होगा. एंड व्हाटएवर वी डू, नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग, हमें दिल से करना है. लेट अस सेव our community, our church faithfully. Lead a happy and prosperous life, because जब हम हैप्पी हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा, हमारा परिवार भी अच्छा, हमारा चर्च भी अच्छा, खुशी है. सब हम एक परिवार है यहाँ पे, सबका नाम जानते हैं हम, मुझे तो सबके बर्थडे भी पता है, सब कहाँ रहते हैं वो भी पता है. तो हमारा एक परिवार है. अपना परिवार के हम सब नहीं जानते, लेकिन ये हमारा परिवार है. परमेश्वर के आशीष हम सब पर है और वो हमारी अगुवाई करेगा, हमें लीड करेगा. Let us be there and do whatever He wants us to do. Amen. अभी हम प्रभु भोज में पार्ट लेंगे और मैं चाहती हूँ कि सब हम खड़े हो जाएं.